یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کا بلیٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی اہم شعبوں میں مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کو مکمل طور سے بروئے کار لانے کی معروف اسٹارٹ اپس کے سی ای او سے اپیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو تقویت بخشنے کی ضرورت پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رواں برس کے دوران 30,000 سے زائد اسامیوں کو تیز تر بنیادوں پر پور کرنے کا دہرایا عزم۔ اور جموں میں جاری قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران متعدد ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات کو کیا اجاگر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں اے آئی اینڈ ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل منعقد کی، اور اس دوران انہوں نے زراعت، ماحولیات کو تحفظ دینے اور مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے جیسے سیکٹروں میں مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کو مکمل طور سے بروئے کار لانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے خلا کے شعبے میں نجی شراکت داری بڑھانے نیز بھارت اسٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کرنے کی سی ای او سے تلقین کی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی آج نئی دلی میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2024 میں شرکت کر رہے سی ای اوز اور مندوبین کے گروپ کے ساتھ ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے رول پر بات چیت کی۔ دریں بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں آج انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2024 کے دوران پیکس سلیکا اعلامیے پر دستخط کیے۔ اس اعلامیے کی بدولت اہم معدنیات اور سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار بڑھانے نیز ابھرتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے تناظر میں ایک محفوظ اور مضبوط عالمی سطح کا سلیکان اور ٹیکنالوجی نظام وجود میں لانے میں مدد ملے گی۔ دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت کا مقصد سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس انڈسٹریز میں عالمی سطح پر ایک قائدانہ رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، آج اسٹوڈنٹس کے پاس میں ورلڈ کے بیسٹ سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ٹولز ہیں، سینوپسس کے، کیڈنس کے، سیمنس کے، اور ایبسلیوٹلی فری۔ اسٹوڈنٹس کو 1 روپیہ بھی وہاں پہ کاسٹ نہیں دینی پڑتی۔ آج آسام سے، جموں کشمیر سے، اڑیسہ سے، راجستھان سے، چھتیس گڑھ سے، تلنگانہ سے، کیرل سے، تمل ناڈو سے، سب جگہ سے اسٹوڈنٹس چپس ڈیزائن کر رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو تقویت بخشنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ثقافتی اور روحانی ورثے سے مالا مال ہے اور ان روایات کی بدولت یکجہتی اور اخوت جیسے اقدار بھی پروان چڑھتے ہیں۔ لوک بھون جموں میں آج اروناچل پردیش اور میزورم کا اسٹیٹ ہوڈ ڈے منانے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ یہ 2 ریاستیں محض جغرافیائی حدود ہی نہیں بلکہ یہ ملک کی عظیم ثقافت اور یکجہتی کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ انہوں نے ان دونوں ریاستوں کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس بات کو سدیو دھیان رکھنا ہوگا کہ سمردھی چند مہانگریہ کیندروں میں سمٹی نہیں رہ سکتی، بلکہ پرتیک چھیتر کو پھلنا اور پھولنا ہوگا، ہر سمدائے کو ترقی کرنی ہوگی اور اس وشال راشٹر کے ہر کونے کو ہماری ساموہک پرگتی میں سارتھک یوگدان بھی دینا ہو۔ اروناچل پردیش اور میزورم ہماری راشٹریہ اسمتا، سانسکرتک گورو اور بھوشیہ کی آساؤں کے پرتیک ہیں۔ یہ دونوں ارجا سے بھرپور راجیوں میں اپار سمبھاونائیں بھی ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ راجیہ بھارت کے وکاس کی کہانی میں اور بھی مہتوپورن بھومکا نبھائیں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ڈیوریا اتر پردیش میں بنکتا شیو کے مقام پر شری لکشمی نارائن مندر میں مہایگیہ اور پرانا پرتشٹھا تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر ایک شہری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے تواریخی ورثے کی عزت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نہ صرف اقتصادی ترقی کی داستان رقم کر رہا ہے بلکہ لوگوں میں تہذیبی اور ثقافتی اقدار کے بارے میں بیداری بھی پیدا کر رہا ہے۔ اب پیش ہیں جموں کشمیر کے ایوان اسمبلی سے اہم خبریں۔ جموں میں قانون ساز اسمبلی کا اجلاس خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ آج بھی متعدد ارکان قانون سازیہ نے عوامی نوعیت کے کئی معاملات کو ایوان میں اجاگر کیا اور متعلقہ وزراء سے جواب طلب کیے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان میں اعلان کیا کہ رواں برس کے دوران 30,000 سے زائد خالی پڑی اسامیوں کو ایک میعاد بند مدت کے اندر پور کیا جائے گا۔ وہ پروفیسر
घरू राम के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भर्ती अमल में तेजी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। दरियासना डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिसंबर 2023 से जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मीटर वाले इलाकों में बिजली की असल खपत के मुताबिक सार्फिन से बिजली फीस वसूल की जाती है और बगैर मीटर वाले इलाकों में लोड एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट रेट के हिसाब से बिजली फीस वसूल की जाती है। निजामुद्दीन भट्ट की तरफ से जीए मीर के बदले पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कमर कापरन में मौजूद रिसीविंग स्टेशन पर काम जारी है और इसे जून 2024 तक कमीशन किया जाएगा। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मानियाल के सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रामगढ़ हलके में कैपेक्स बजट के तहत 3 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं और एक पर काम जारी है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सुरेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मड हलके में 2025 के सैलाब के बाद 9 करोड़ 84 लाख रुपए लागत वाले 92 काम दरदस्त लिए गए। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने पीरजादा फारूक अहमद शाह, सुरजीत सिंह सलातिया, अली मोहम्मद सागर और गुलाम महीउद्दीन मीर के तलब किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने के लिए अरकान असम्बली, मोअज़्ज़ज़ शहरियों, दानिश्वरों, मजहबी लीडरों, गर्द समाज के सभी तबकों को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मसले पर काबू पाने के लिए कई इख्तिराई इक़दाम किए हैं। वज़ीर मौसूफा ने शबीर अहमद कुल्ले के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 3000 CPWs की नौकरियां मुस्तकिल कराने के लिए हुकूमत ने तारीखी फैसला लिया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने देवयानी राना के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में रिंग रोड प्रोजेक्टों के लिए हासिल की जा रही अराजी का मुआवजा वज़ा किए गए कवानीन के मुताबिक वागुजार किया जाता है। दरियासना कानून साज असम्बली ने आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन, ARI एंड ट्रेनिंग्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी और यूथ सर्विस सपोर्ट्स महकमे के मुतालबात ज़र को ज़बानी वोट से पास किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर में कामगारों के लिए वेलफेयर स्कीमों के फ़वाइद बिला किसी तवालत के पहुंचाने के लिए कवानीन को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जम्मू में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कामगारों के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। मीटिंग में MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का दूसरा दिन है। इस महीने के पहले 10 अयाम को अशरे रहमत भी कहा जाता है। माह सियाम की मुनासिबत से आज वादी की मसाजिद, खानकाहों और बुकाजात में खुसूसी दीनी मजालिस का एहतमाम किया गया। उलमाए दीन ने नमाज जुमा के दौरान इस अशरे की फजीलत पर तफसील से रोशनी डाली। इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी के एक मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल हमीद नईमी ने अपने पैगाम में कहा, जो पहला 10 दिन का खैर रहमत हुआ, इसमें हमें करना ये चाहिए कि हमारे कलाम से, हमारे गुफ्तार से, हमारे किरदार से हर एक को देखना चाहिए कि इस बंदे से रहमत टपकती है क्योंकि ये रोजे से है। रहमत का मतलब ही होता है नरम होना, नरम दिल होना, एक उसके साथ खुश अखलाकी, नरम के साथ पेश आना। इसलिए हम इन 10 दिनों को इस तरह गुजारे कि लगे हमारे पूरे किरदार से, गुफ्तार से, उठने बैठने से, कलाम करने से रहमत टपकती है, नरमी टपकती है, ताकि हमारे जिंदगियों में मजीद इस्लाम मुमकिन हो सके। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मादरी ज़ुबान के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि अपनी ज़ुबान और तहजीब तमद्दुन को जिंदा रखना बागयूर कौमों की निशानी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तमाम ज़ुबानों को जिंदा रखने से ही हमारी इनफरादियत और पहचान बरकरार रह सकती है। दरियासना पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान, मियां अल्ताफ़ अहमद और सज्जाद अहमद किचलू ने कश्मीर और जम्मू सूबे के इंतज़ामिया से अपील की है कि वो लोगों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने में कोई भी का फरोगुजाश्त न करें। प्रजापति सभा के एक वफद ने आज जम्मू में बीजेपी सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा के साथ मुलाकात की और प्रजापति तबके को दरपेश कई मामलात उनकी नोटिस में लाए। इस मौके पर बीजेपी OBC मोर्चा के सदर
ब्रह्म ज्योति सत्ती भी मौजूद थे। सत शर्मा ने वफद को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। दरअसनात सत शर्मा ने आज श्रीनगर में पार्टी मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी अमूर और प्रोग्रामों का जायजा लिया। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सेक्रेटरी आरिफ राजा, तर्जमान अल्ताफ ठाकुर और कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज पुंछ के मंडी और मगनार इलाकों में अवामी दरबारों का इनेकाद करके अफसरों की मौजूदगी में लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने खबरदार किया है कि भारत अमेरिका मुजवज़ा तिजारती मुआहदे से जम्मू कश्मीर की मेवा सनत और मुल्क के ज़री मंजरनामे पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेवा सनत को जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लिहाजा वज़ीर आज़म को मुजवज़ा मुआहदा के ताल्लुक से दोबारा गौर करना चाहिए और बैरून मुल्क से आने वाले मेवाजात पर कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की जानी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई न करने पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सहरी और अफ्तारी के औकात में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा की मांग को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन सेशन जनवरी 2026 के तहत मुख्तलिफ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्रामों और ओपन डिस्टेंस प्रोग्रामों के लिए दाखिलों और री रजिस्ट्रेशन की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। वाज़ेह रहे कि यूनिवर्सिटी ने 60 नए प्रोग्राम शामिल किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ मज़ामीन के 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी शामिल हैं। उम्मीदवार इस हवाले से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ignou.ac.in से जानकारी हासिल कर सकते हैं। IGP कश्मीर VK बिर्दी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान अहम शख्सियात के जम्मू कश्मीर के दौरे के तनाजुर में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सलामती की मुख्तलिफ एजेंसियों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी मशकूक सरगर्मी पर कड़ी नजर गुजर रखी जानी चाहिए। अब पेश है मनुष्यात के खिलाफ पुलिस और दीगर अवाम दोस्त सरगर्मियों से मुताल्लिक खबरें। राजौरी पुलिस और 54 RR ने एक टेरर मॉड्यूल का पता लगाकर एक टेरर मुआविन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ असलहा बरामद किया है। राजौरी पुलिस ने चौधरी नार इलाके में 3 ड्रग स्मगलरों को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। जम्मू पुलिस साउथ जोन ने सैनिक कॉलोनी इलाके में एक ड्रग स्मगलर को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। उधमपुर पुलिस ने कौमी शाहराह पर चनानी के मकाम पर एक ड्रग पैडलर को कुछ मिकदार में हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। कुठवा पुलिस ने 17,29,000 रुपए मालियत वाले 86 चुराए गए फोन्स को बरामद किया है। पुलिस ने बड़गाम और सोपोर में 3 ड्रग स्मगलरों को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवामी मसाइल को हल करने की गर्ज से जिला बारामुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में 30 पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों का इनेकाद किया। बारामुल्ला पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी से निमटने के लिए मुख्तलिफ मकामात से इस काम में मुलव्वस 4 गाड़ियों को जब्त किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में डेंटल कॉलेज श्रीनगर की डेंटल सर्जन डॉक्टर सादिया जान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि ड्रग एडिक्शन जो है वो एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से फैमिलीज, कम्युनिटीज और फ्यूचर जो यूथ का है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर फैमिली सपोर्ट करेगी इमोशनली तो बच्चा जो है इन चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहेगा। हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिनके साथ हमारा डेली उठना बैठना होता है, तो उसमें फ्रेंड्स आते हैं तो हमें उनको वाइजली चूज करना है। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको लर्न करना है। उस सोसाइटी, गवर्नमेंट, इनका क्या है रोल प्रिवेंशन में। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हम क्रिएट करें कॉलेज में, स्कूल में, तो वो बेटर वो एक मैसेज मिलेगी बच्चों को, जिसकी वजह से वो सोसाइटी को भी मैसेज पहुंचाएंगे कि इनसे क्या हमें नुकसानात मिलते हैं ड्रग्स से। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक़्तिसादी जराइम से मुतालिक विंग ने HDFC बैंक में माली बेज़ाब्तगी के एक मामले में 5 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के एहलकारों ने शोपियां और बडगाम अजला में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां भी अमल में लाईं। एक और कार्रवाई में इक़्तिसादी जराइम से मुतालिक विंग ने बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में दाखिले के हवाले से एक अलहदा मामले में 4 मुलजिमों की गिरफ्तारी अमल में लाई है।
کل مادری زبان کی اہمیت کا عالمی دن ہے۔ اس تعلق سے وادی میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ساگر کلچرل فورم جموں کشمیر کی طرف سے کل قادری اسٹڈیز سینٹر بارہمولہ میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں کشمیری زبان کی اہمیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:09 اور غروب آفتاب شام 6:20 پر ہوگا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی اہم شعبوں میں مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کو مکمل طور سے بروئے کار لانے کی معروف اسٹارٹ اپس کے سی ای او سے اپیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو تقویت بخشنے کی ضرورت پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رواں برس کے دوران 30,000 سے زائد اسامیوں کو تیز تر بنیادوں پر پر کرنے کا دہرایا عزم۔ اور جموں میں جاری قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران متعدد ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات کو کیا اجاگر۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔